Hello bachcho, how are you? I hope you all are doing well and enjoying the new stories from your English book and the poems as well. I am sure this is all fun and you're learning something new every day. Great. Now we are going to look at this new chapter of ours. Let's see what it has to tell us. The chapter's name is A Beautiful Song. So what does the prologue say? It says, friendship is a special relationship. Friendship is truly a ship, carrying people with care and safety. We spend so much time with our friends. They are always there for us, to support and help us. We should also help and support our friends. Remember that a true friend will guide us on the right path and not encourage us to do wrong. Friends help us become better people. They also help us during tough times. So children, what does this mean? It means that friendship is really a very strong bond. आपके दोस्त हैं ना, बहुत सारे दोस्त हैं, पर उसमें से भी आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं. ओके, वो आपको आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स में, आपके हैप्पी टाइम्स में, आपके सैड टाइम्स में हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे. अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको करेक्ट करेंगे, अगर आप कुछ सही कर रहे हो तो आपको बढ़ावा देंगे. ओके, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर. सो डू मेक वेरी गुड फ्रेंड्स. ओके, नाउ लेट्स वार्म अप. Have you ever had difficulty in explaining a situation to your friend? And why was it difficult? What did you do then? Okay, आपके लाइफ में कभी ऐसे कोई सिचुएशन आई है जिसको आप अपने दोस्त को समझा नहीं पा रहे हो और उसको बता नहीं पा रहे हो? तो क्या है वो सिचुएशन और क्यों आप उसको बता नहीं पाए? सोचो उसके बारे में and do share it with your friends. Okay? Now let's read this chapter. Okay, it says, there was once a king who had a golden bird in a golden cage. Every day someone in the palace gave her food and water and groomed her fine yellow feathers. And each day the bird sang for the king. But as time passed, the king began to feel sorry for the bird. It is not right, he thought, to hold a bird in a cage. And so he told his men to set her free. The men took the cage deep into the jungle, set it down, opened the door and went away. So बच्चों, एक राजा होता है. राजा के पास गोल्डन केज में होता है एक गोल्डन कलर का बर्ड. ओके, रोज पैलेस में उसको बर्ड को खाना और पानी दिया जाता है और उसके जो ब्यूटीफुल प्यारे प्यारे से जो पंख होते हैं उसको भी ग्रूम किया जाता है. और ये बर्ड क्या करता है? राजा के लिए गाना गाता है. ओके, बट जैसे जैसे टाइम पास हो जाता है वैसे वैसे राजा को लगने लगता है कि ये तो गलत बात है कि मैंने एक बर्ड को पिंजरे में बंद करके रखा है. तो वो क्या कहता है? अपने लोगों से कहता है कि आप ये जंगल में लेके जाओ इस बर्ड को और उसको फ्री कर दो. तो जो उसके मैन होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो उसको लेके जाते हैं और उसको जंगल में वो पिंजरे को खोल के बर्ड को फ्री कर देते हैं. The golden bird hopped out. She looked around. She was hungry. After a while, she saw a monkey swinging from a tree. Hello there, said the monkey. Who are you? The bird tossed her head and said, I am the golden bird. I can see you are new to the jungle, said the monkey. Do you want to see the best places to feed? What can a monkey teach me? Replied the bird. And you have such a funny face. Have you seen my beautiful beak? She added. Do as you like, said the monkey as he swung off into the trees. तो क्या होता है, जैसे ही वो मैन उसको जंगल में फ्री कर देते बर्ड को, वैसे वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है. अब उसको भूख लगने लगती है, तो जैसे वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही है, खाना ढूंढ रही थी, उसकी नज़र पड़ जाती है एक बंदर पे, एक मंकी पे. ओके, अब ये मंकी उसको पूछता है कि कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है. तो कहती है, मैं हूँ गोल्डन बर्ड. तो मंकी उसके पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ आना है? मैं तुम्हें अलग अलग जगह दिखाऊंगा जहाँ पे तुम्हें बहुत सारा खाने मिल जाएगा. तो अब ये गोल्डन बर्ड को थोड़ा सा तो अपना ईगो होता है. वो तो कहती है कि तुम्हारा फेस तो कितना फ़नी है और मेरी चोंच देखो कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है. तो मंकी को आता है गुस्सा, तो उसको कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, और फिर वो मंकी वहाँ से निकल जाता है. Okay, now let's track your performance. Let me see how much of the story followed. Okay, what did the king order his men? And what did the bird say to the monkey when he offered help?
Some time later, the golden bird heard a hissing noise in the grass and saw a snake. "Well, hello," hissed the snake. "Who are you?" "I am the golden bird," replied the bird. "Come, let me show you the jungle," said the snake. "No," said the bird. "What can a snake teach me? And you have a hissing voice. Do you know I sing beautifully?" "Maybe," hissed the snake and he slithered away. ओके, अब थोड़ी देर के बाद जो गोल्डन बर्ड होती है उसको एक हिसिंग साउंड सुनाई देती है और वो देखती है कि ग्रास पे एक स्नेक है। तो स्नेक उसको हेलो कहता है, उसको पूछता है कौन हो तुम? तो कहती है मैं तो गोल्डन बर्ड हूँ। तो स्नेक उससे कहता है आ जाओ, मैं तुम्हें जंगल दिखाता हूँ। तो वो कहती है तुम जैसा सांप मुझे क्या सिखाएगा, और तुम्हारा आवाज़ कैसा है, हिसिंग वाला आवाज़ है, तुमने कभी मेरी आवाज़ सुनी है, मैं कितना सुंदर गाती हूँ। अब स्नेक को भी गुस्सा आता है, वो मे बी बोलता है उसको और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। Just then something moved on the tree in front of the bird. She looked up and saw a chameleon. He was the same color as the tree trunk. The bird was rude to the chameleon too, so he left her and darted away. Suddenly the golden bird saw a large eagle above the jungle. The monkey hid among the leaves of the trees. The snake slid into the deepest part of the ground. The chameleon stayed quite still. No one could see him. The golden bird now wanted to fly away fast. She flapped her wings, but they were weak. She had never used them in the king's palace, and now she could not fly. "Please, someone help me," she cried. At that moment, the golden bird felt something like a rope pulling her into some bushes. It was the snake. Then a long, hairy arm lifted her up a tree. It was the monkey. "Don't move," whispered the chameleon and pushed her into the center of a large yellow flower. The eagle flew straight past her. "How can I thank you all?" exclaimed the bird. "You saved my life." "You can sing for us," replied the animals kindly. From then on, the monkey, the snake, and the chameleon looked after the golden bird, and she sang her beautiful song for them every day. So, क्या होता है, अचानक से फिर जब सांप चला जाता है तो उसकी नज़र पड़ती है एक कमेलियन पर। वो वैसे ही कमेलियन का भी मजाक उड़ा देती है। और फिर उसके बाद वो भी चला जाता है। अब अचानक से वहाँ पे आ जाता है, एक बड़ी सी ईगल आ जाती है। अब तो जो बंदर होता है वो तो लीव्स के बीच में छुप जाता है, जो स्नेक होता है वो भी नीचे होल में चला जाता है, ग्राउंड के अंदर छुप जाता है। अब कमेलियन जो होता है शांति से एक ही जगह पे बैठ जाता है, कोई शोर नहीं करता है, कोई आवाज़ नहीं करता है। अब ये गोल्डन बर्ड जब ईगल को देखते तो उसको तो ऐसा लगता है मैं कहाँ भाग जाऊँ, और वो उड़ने की कोशिश करते, पर उसके विंग्स जो कभी यूज़ नहीं करती है, जैसे क्योंकि वो पिंजरे में बंद थी तो उसको उड़ना भी नहीं आता था इतनी ज़ोर से, तो वो क्या करती है, वो वहाँ पे फंस जाती है। तभी अचानक से उसको लगता है कोई रोप उसको खींच रहा है, तो वो होता है स्नेक जो उसको खींच के नीचे ले लेता है, और फिर जो मंकी होता है वो उसको अपने आर्म से, उसके अपने हाथ से खींचता है और उसको ट्री के ऊपर छुपा देता है। और तभी कैमेलियन उसको बोलते हैं कोई शोर मत करना, शांति से बैठ जाना, और उसको एक जो पीले रंग का फूल होता है उसके अंदर उसको छुपा देता है। तो जैसे ही ईगल को तो अभी कोई मिलता नहीं है तो वो वहाँ से पास हो जाते हैं। अब वो बर्ड को रियलाइज होता है कि इन तीनों ने तो उसकी हेल्प की है, तो वो इतना खुश हो जाती है और वो कहती है मैं आप सबका शुक्रिया कैसे अदा करूं, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। सो तब से द मंकी, स्नेक और कैमेलियन उस गोल्डन बर्ड के साथ दोस्ती करते हैं और डेली उसका ख्याल रखते हैं, और बदले में वो उनके लिए एक सुंदर सा गीत रोज गाती है। सो देखा बच्चों, how some people do help you even if you are rude to them. जैसे तो गोल्डन बर्ड रूड थी, फिर भी इन्होंने उसको अपना दोस्त समझा और उसकी मदद की। वैसे ही कभी कभी आपके दोस्त भी आपके साथ रूड हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए केयर नहीं करेंगे। यू हैव टू शो योर लव टू देम टू गेट योर लव बैक। ओके, सो लव योर फ्रेंड्स and take care of your friends as well. Okay, now quickly reread this chapter, learn the important words and practice the difficult words, and don't forget to do the back exercises.